آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر سال کی طرح اس سال بھی فوجی بھائیوں کے ساتھ منائی دیوالی۔ کہا ہندوستان اپنی 1 انچ زمین پر بھی نہیں کرے گا سمجھوتا۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی آج برسی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور دیگر قائدین کا خراج۔ وقف اراضی مسئلے پر بی جے پی کی کرناٹک بند کی اپیل، یہ ہے سیاسی چال، چیف منسٹر سدھارمیہ کا رد عمل۔ اور پٹاخوں سے بھرا تھیلا لے جانے کے دوران دھماکہ، 1 ہلاک 6 زخمی۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے جمعرات کو بھارت رتن سردار پٹیل کو ان کے یوم پیدائش پر پٹیل چوک میں ان کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کر کے خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک کے پہلے وزیر داخلہ اور مرد آہن کے نام سے مشہور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش کو ملک بھر میں قومی اتحاد کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے صبح 7 بجے پٹیل چوک پہنچ کر سردار پٹیل کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ संग्राम के एक महान नेता थे, बल्कि नूतन भारत के एक महान रचयिता थे, शक्तिदाता थे। وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو گجرات کے کچھ علاقے میں فوج کے جوانوں کے ساتھ دیوالی منائی۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی دیوالی کے دن وزیر اعظم مودی سرحدی علاقوں میں تعینات فوجیوں کے درمیان گئے اور ان کے ساتھ دیوالی منائی۔ مودی آج گجرات کے دورے پر ہیں۔ وہ کچھ کے علاقے میں تھے اور وہاں تعینات فوجیوں کے ساتھ دیوالی کی خوشیاں بانٹیں۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہندوستان اپنی سرحدوں پر 1 انچ زمین پر بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگ ملک کے دفاع کے لیے اپنی مسلح افواج کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ مودی نے مزید کہا کہ ہم نے سرحدی دیہاتوں کے آخری گاؤں کو سمجھنے کی ذہنیت کو بدل دیا ہے۔ ہم آج انہیں ملک کا پہلا گاؤں کہتے ہیں۔ ساتھیوں، آج دیش میں ایک ایسی سرکار ہے جو دیش کی سیما کے 1 انچ سے بھی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ ایک سمے تھا جب ڈپلومیسی کے نام پر سرکریک کو چھل سے ہڑپنے کی پالیسی پر کام ہو رہا تھا۔ میں نے تب گجرات کے مکھیہ منتری کے روپ میں بھی دیش کی آواز کو بلند کیا تھا۔ ہم نے سیماورتی گاؤں کو آخری گاؤں ماننے کی سوچ بھی بدلی ہے۔ آج ہم انہیں دیش کا پرتھم گاؤں کہتے ہیں۔ آخری گاؤں نہیں، وہ پرتھم گاؤں۔ وائبرنٹ ولیج یوجنا کے تحت دیش کے پرتھم گاؤں کا وکاس کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 سال ہندوستان کے اتحاد اور سالمیت کے لیے بے مثال کامیابیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور حکومت کے ہر کام اور ہر مشن میں قومی اتحاد کے لیے عزم نظر آتا ہے۔ نریندر مودی نے یہ بات گجرات کے ایکتا نگر کے کیواڑیا پریڈ گراؤنڈ میں اسٹیچو آف یونٹی پر سردار پٹیل کو شاندار خراج عقیدت پیش کرنے اور مسلح افواج کے عہدیداروں کی جانب سے شاندار پریڈ دیکھنے کے بعد اپنے خطاب کے دوران کہی۔ نریندر مودی نے کہا، آج حکومت کے ہر کام، ہر مشن میں قومی اتحاد کی وابستگی نظر آتی ہے۔ سچے ہندوستانیوں کے طور پر ہمارا فرض ہے کہ قومی اتحاد کی ہر کوشش کو جوش خروش و جذبے اور توانائی کے ساتھ منائیں۔ نئے عزم، امیدوں اور مضبوطی کے ساتھ جوش و خروش، یہ حقیقی جشن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے ہندوستان میں مختلف ٹیکس سسٹم تھے، لیکن ہم نے 1 نیشن 1 ٹیکس سسٹم نافذ کر دیا ہے، جسے GST کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم نے 1 نیشن 1 پاور گرڈ کے ساتھ ملک کے پاور سیکٹر کو مضبوط بھی کیا۔ وزارت داخلہ نے جمعرات کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش کے موقع پر 6 کیندریہ گرہ منتری دکشتا پدک کا اعلان کیا۔ یہ اعزازات ان پولیس عہدیداروں کو دی جائیں گے جنہوں نے خصوصی آپریشنز، جانچ، فورنسک سائنس وغیرہ کے شعبوں میں غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔
मुल्क भर के 463 पुलिस ओहदेदारों को इन एजाज़ात का ऐलान किया गया है, जिनमें तेलुगु रियासतों के पुलिस ओहदेदार भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बशमूल आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतें, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दीगर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के CRPF, CBI, NIA, NCP, ITBP जैसे मरकज़ी मुसल्लह दस्तों के मुलाजिमीन के लिए इस अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश के 2 SP, तेलंगाना के 1 SP और तेलुगु रियासतों के कई पुलिस कांस्टेबल्स शामिल हैं, जिन्हें ये एजाज़ से नवाजा गया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर ख़राज-ए-क़िदत पेश किया। कांग्रेस कायद ने कहा, पंडित जी की इंदु, बापू की प्रियदर्शिनी, निडर, बेखौफ, इंसाफ पसंद हिंदुस्तान की इंदिरा दादी, मुल्क के इत्तेहाद और सलामत के लिए आपकी कुर्बानी हमको हमेशा अवामी खिदमत के रास्ते पर चलने की तरगीब देती रहेगी। इससे कबल राहुल गांधी ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पहुंचकर उनकी बरसी पर उन्हें ख़राज-ए-क़िदत पेश किया और कहा कि मुल्क के इत्तेहाद और सलामत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली इंदिरा गांधी को ख़राज-ए-क़िदत पेश करता हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा, मुल्क के तई आपकी लगन, कुर्बानी, जो कुछ हमने आपसे सीखा और आपकी जानिब से दी गई इक़दार हमेशा हमारी रहनुमा रहेंगी। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की और कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को तजुर्बेगाह समझ रही है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए एक तजुर्बेगाह है जहां मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात करती है। महबूबा मुफ्ती ने आज के दिन को सियाह दिन करार दिया और कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता और जम्मू कश्मीर को अपना खुसूसी मौक़िफ़ इख्तियार नहीं मिल जाता, तब तक ये हमारे लिए सियाह दिन रहेगा। मैंने कई बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी सरकार के लिए एक लेबॉर्ट्री बन चुका है, जहां वो मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे करती है और पूरे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ है उनको ये मैसेज देना चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जहां की लीडरशिप ने 1947 में रिवायत से हट के एक जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ बावजूद इसके कि हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे, हाथ मिलाया कुछ सोच समझ के। तो आज बीजेपी तमाम माइनॉरिटीज़ को ये मैसेज देना चाहती है कि अगर हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं, उसको तबाह कर सकते हैं, उससे उसके खुसूसी इख्तियारात छीन सकते हैं, उसके वसाइल के साथ मनमानी कर सकते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1947 से लेके आज तक कभी भी किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया, बल्कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ ये आज तक कहीं नहीं हुआ है। इसके बावजूद हुआ कि जम्मू कश्मीर ने बहुत मुश्किल हालात में 1947 में रिवायत से हट के एक फैसला किया था, ये सोच के कि हमारी एक खुसूसी शनाख्त है, एक मखसूस शनाख्त है, इस मुल्क के साथ हम बाख्तियार तरीके से इज्जत से रह सकेंगे। तो मेरा ये कहना है गवर्नर साहब को कि हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, बिलखुसूस PDP के लिए आज का दिन एक काला दिन है और इसको हम काले दिन के तौर पे देखेंगे तब तक जब तक जम्मू कश्मीर के जो खुसूसी इख्तियारात हैं वो वापस नहीं हो जाते हैं, जब तक जम्मू कश्मीर के वसाइल पे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक पूरी तरह से साबित नहीं होता है, इख्तियार नहीं होता है, और जब तक जम्मू कश्मीर में बाइज्जत अमन बहाल करने के लिए मसले कश्मीर को हल नहीं किया जाता है, तब तक PDP अपनी जदोजहद बरकरार रखेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो हाल ही के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ एक मेजॉरिटी वाली सरकार को चुना, वो सरकार भी इसमें इकट्ठा होके तमाम लोगों को साथ चला के एक जदोजहद करेगी, ताकि जो जम्मू कश्मीर जिस मुसीबत में इसको फंसाया गया है
लीडर बरहम सिंह तनवर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर और दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शमूलियत के बाद बरहम सिंह तनवर ने कहा कि मेरे फैसले की वजह से कुछ लोगों और हालात की वजह से अदम इत्मीनान का एहसास था। जब मैंने ऐसा महसूस किया तो मैंने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला किया, इस यकीन के साथ कि मैं अब भी इलाकाई लोगों के लिए काम कर सकता हूँ। बस शामिल तो ये वजह तो यही रही है कि कहीं ना कहीं मन भर गया था किसी कारण, किसी व्यक्ति के कारण, और जब मन भर गया तो रास्ता बदल लिया और यही सोचा कि अब क्षेत्र का विकास करना है तो कहीं भी रह कर के कर सकते हैं। नहीं, मैं मुंह खोलूँगा तो बहुत सारी बातें आएंगी अब हाँ, तो ऐसे ही रहा। कुछ लोगों का कार्य पसंद नहीं आया और उनसे कह दिया था कि अब आपसे मेरा मन भर गया और मैं रास्ता बदल रहा हूँ अपना। तो उनके लड़ने भिड़ने से के बजाय आराम से रास्ता अपना दूसरा बदल ले, वो अच्छा होता है। नहीं, बदलाव तो यही, अब हमने तो अब क्षेत्र की सेवा करनी है। वहाँ उस प्लेटफार्म से नहीं हो रहे तो इस प्लेटफार्म से करेंगे, पर क्षेत्र की सेवा करनी है, यही अपने मन में बात। हाँ, चुनाव पार्टी लड़ाएगी, जरूर लड़ूंगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने जुमेरात को वक्फ ज़मीन के मामले पर बीजेपी की तरफ से दी गई रियासतगीर एहतजाज की अपील को सियासी फ़ायदे के हुसूल के लिए करार दिया, जिसका मकसद कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात और महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात पर असर अंदाज होना है। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी वक्फ के मसले को उठाकर रियासत के ज़िमनी इंतखाबात और महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करना चाहती है। बेंगलुरु में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने कहा, बीजेपी ने वक्फ जायदाद के मामले पर एहतजाज की काल सियासी मकासद के तहत दी है। कर्नाटक में वक्फ अराजी के मामले ने तशद्दुद का रुख इख्तियार कर लिया, जिसके नतीजे में रियासत के ज़िले हावेरी में खौफजदा अफराद ने वक्फ बोर्ड की जानिब से इनकी जायदाद के कब्ज़े के खदशे के तहत मुस्लिम कायदीन के घरों पर पथराव किया। जुमेरात को हुक्काम ने बताया कि इस वाक़े में 5 अफराद ज़ख्मी हुए। ये वाक़या चारशंबे की रात कड़कुला गांव में पेश आया। एक हुजूम ने मुकामी लीडर मोहम्मद रफ़ी पर पथराव किया और इनकी बाइक को भी नुकसान पहुंचाया। अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई दीगर लीडर्स भी इसका निशाना बने। डिप्टी कमिश्नर विजय महानीतीश, एसपी अंशुर कुमार श्रीवास्तव और दीगर अहलकार फौरी तौर पर हालात का जायज़ा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पथराव में मुलविस अफराद की शनाख्त करके उन्हें हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के इलाके गणेश पार्क में एक जोरदार धमाके में नौजवान की मौत हो गई, जबकि एक खातून शदीद जख्मी बताई गई है। इतलात के मुताबिक धमाके की वजूहात का पता नहीं चल सका। धमाके के फौरी बाद महलूक नौजवान और जख्मी खातून की दवाखाना मुंतकिली अमल में आई। धमाके से करीबी मकानात लरज़ उठे और पास में ठहरी हुई कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को मुतय्यन कर दिया गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंच गया। झारखंड के बोकारो ज़िले में दिवाली के मौके पर बड़ा हादसा पेश आया। गुरगा पुल के करीब पटाखों की दुकानों में ज़बरदस्त आग लग गई। इस आग में तकरीबन 66 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गईं। आग इतनी शदीद थी कि इसके शोले दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। इस हादसे में लाखों रुपए मालियत के पटाखे जलकर राख हो गए। जब तक फायर ब्रिगेड मौका में वाक़े पर पहुंचा तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया।
आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर लोकेश अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गूगल क्लाउड के सीईओ और नायब सदूर से मुलाकात की। उन्होंने विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड डेटा सेंटर कायम करने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स में ताउन करने की भी अपील की। इन कंपनियों की जानिब से ई गवर्नेंस और डिजिटल तालीम के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत के साथ काम करने की तजवीज़ है। गूगल क्लाउड के नुमाइंदों ने कहा कि वो टीम के साथ बातचीत करके फैसला करेंगे। इस मौके पर लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन मरकज़ बन रहा है। हम विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर कायम करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की बरसी तकरीब मुनक्किद हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ समेत रियासती वज़रा और पार्टी कायदीन ने उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुल्क में कई इस्लाहात लाने वाली वाहिद खातून साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी थीं। मौजूदा बेशतर सियासतदानों के लिए वो जज्बा हैं। उनकी बरसी के मौके पर शहर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर उनके मुजस्समे पर पूनम प्रभाकर, साबिक रुकन पार्लियामेंट हनुमंतराव और दीगर ने फूल निछावर करते हुए मुल्क के लिए इनकी खिदमत की याद को ताज़ा किया। व्यवहार परंगा ఉండాల్లో ఇందిరాగాంధీ గారు అందరికీ ఆదర్శం. అందుకే మరొకసారి ఇందిరమ్మ లాంటి నాయకురాలు ఇందిరాగాంధీ గారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి ఈనాటి దేశ యువత అందరూ కూడా ఆచరణ తీసుకొని దేశ ఐక్యత కొరకు కావచ్చు, జాతీయ భావం కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, పేదల పట్ల పూర్తిగా శ్రద్ధ కావచ్చు, అన్ని రకాల అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారు మరి పూర్తి ప్రపంచ స్థాయిలో నిలిచినటువంటి నాయకురాలిగా మన భారతదేశ అత్యధిక కాలంగా ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారికి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పక్షాన, హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ పక్షాన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరూ కూడా నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నాం. शहर हैदराबाद में तालाबों झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम करदा हैड्रा ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद के तालाबों की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए एक और अहम फैसला किया है। कमिश्नर हैड्रा रंगनाथ ने इंकशाफ किया कि तालाबों के इफ्टील की तस्दीक की जाएगी और उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इसी के एक हिस्से के तौर पर रंगनाथ, जिन्होंने आउटर रिंग रोड के करीब ख्वाजागुड़ा में ताउटोली कुंटे का दौरा किया, उन्होंने रेवेन्यू, महकमे आबपाशी और GHMC के अहदेदारों के साथ तालाब की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया। ग्रुप 1 इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन का मुहासरा करने वाले तुलबा लीडर मोतीलाल नायक को चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के फौरी बाद उनके साथियों ने उनको जेल के बाहर ही तहनीत पेश की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेरोज़गार नौजवानों के कास के लिए एहतजाज करने पर उनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद में हुजूमी तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुस्लिम लड़की के साथ नजर आने पर एक मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाते हुए उसको शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया गया था। हुजूम ने दरख्त से बांधकर इसकी पिटाई की और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मंजर का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद मुतासरा शख्स की मां को तलब करते हुए इन पर भी हमला किया गया था। इसकी शिकायत पर पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंच गई और इस नौजवान की, जिसकी शनाख्त आबिद हुसैन के तौर पर की गई है, हुजूम से बचाकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस पर भी हुजूम ने हमला किया था। पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। कागज़नगर के DSP रामानुजम और कागज़नगर रूरल CI श्रीनिवास ने बताया कि ज़िले के इस गांव मौज़े में इस माह की 26 तारीख को पेश आए इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। बाज़ मुलजिमीन मफरूर हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिजिटल क्रैप सर्वे में अदम शिरकत पर मुअत्तल 160 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के साथ तेलंगाना के महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बातचीत नाकाम रही। इस मुअत्तली के खिलाफ ये अहदेदार एहतजाज कर रहे हैं। रियासती कमेटी बराए
AEOs ने महकमे के तमाम 2600 AEOs से कहा कि वो अपने मुअत्तल साथियों के साथ यकजहती का इजहार करें। इन मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि डिजिटल क्रैप सर्वे न करने पर उनको हरासा किया जा रहा है। दिवाली के तोहफे के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुलाजिमीन के ख़ानदानों की सहूलियात को नज़र में रखते हुए 2 दिन कबल तनख्वाहें जारी कर दी हैं। 30,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन के लिए 120 करोड़ रुपए से ज़ायद की तनख्वाहें अदा की गईं। आमतौर पर GHMC मुलाजिमीन को महीने के दूसरे या तीसरे दिन तनख्वाह अदा की जाती है। इस बार दिवाली का त्यौहार होने की वजह से पहले तनख्वाह मिलने पर GHMC के मुलाजिमीन और वर्कर्स खुश हैं। दीपावली के मौके पर आंध्र प्रदेश के एल्लूर शहर में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। ये वाक़या शहर के मशरक़ी मोहल्ले में उस वक्त पेश आया जब 3 नौजवान एक बाइक पर पटाखों से भरा थैला ले जा रहे थे कि अचानक शदीद धमाका हुआ। तफसीलात के मुताबिक सुधाकर नामी नौजवान बाइक पर अपने 2 साथियों के साथ पटाखों से भरा एक थैला ले जा रहा था। जैसे ही वो गंगा अम्मा मंदिर के पास पहुंचा, सड़क पर मौजूद एक गड्ढे की वजह से इसकी बाइक का तवाज़ुन बिगड़ गया, जिससे थैला नीचे गिरा। थैला नीचे गिरने के फ़ौरन बाद धमाका हुआ, जिसके नतीजे में सुधाकर मौके पर ही हलाक हो गया। इस धमाके में आसपास मौजूद 6 अफराद भी ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद के गिरिजन गर्ल्स स्कूल की तकरीबन 30 तालिबात बीमार हो गईं। ज़िले के वांकेड़ी मंडल के मुस्तकिल स्कूल की तालिबात ने पेट में दर्द और इसहाल की शिकायत की, जिसके बाद इनको इलाज के लिए फौरी तौर पर मंडल मुस्तक़र के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल में नाकाफ़ी बिस्तरों की वजह से एक बिस्तर पर 2 तालिबात को रखा गया और उनका इलाज किया गया। सब इंस्पेक्टर पर हरासनी का इल्ज़ाम लगाते हुए एक छोटे ताजिर ने पुलिस स्टेशन में खुदसूजी की कोशिश की। ये वाक़या तेलंगाना के वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में मट्टेवाड़ा पुलिस स्टेशन में पेश आया। इसने पुलिस की मौजूदगी में अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेने की कोशिश की। ताहम वहाँ मौजूद पुलिस मुलाजिमीन चौकस हो गए और उन्हें उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके जिस्म पर पानी डाल दिया गया। यादाद्री भुवनगिर ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में शौहर और बीवी हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले के दंडू मलकापुर के करीब कल रात उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई कार को कानगी ट्रैवल्स की बस ने पीछे से टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि शौहर और बीवी मौके पर ही हलाक हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी फौजी भाइयों के साथ मनाई दिवाली। कहा, हिंदुस्तान अपनी 1 इंच जमीन पर भी नहीं करेगा समझौता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की आज बरसी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर कायदीन का खराज। वक्फ अराजी मसले पर बीजेपी की कर्नाटक बंद की अपील। यह है सियासी चाल, चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया का रद्द-ए-अमल। और पटाखों से भरा थैला ले जाने के दौरान धमाका, 1 हलाक 6 जख्मी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।